Morning, sir. Good morning. Good morning. Sir, Good morning to all of you. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 9. Okay. I hope that my voice is audible. Please reply. Am I Sir, audible to audible. everyone? yes, sir, audible. Yes, sir. Yes, You are sir. audible. Yes, sir, audible. Okay. Good. 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 And I hope that all of you have started doing your portfolio work also. Okay. Is it so? Do you people have started your portfolio work? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Sir, my Yes, Huh. sir. duet. Okay, so till now I have given three activities, and all the three activities are from history chapter 1. Okay, so one of the student has started sending me, but again I am requesting you, please, okay, don't send the activities that you are completing. Okay, because I would like to have the activity in one single go. ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज कंप्लीट होंगी वो मैं 2 या 3 बार में मैक्सिमम बुलवाऊंगा, बट डोंट सेंड ईच एंड एवरी एक्टिविटी. इज इट क्लियर? ओके. Yes, sir. Yes. So let us proceed to the today's topic once again. Okay. So just I am going to present my screen. Okay. Just a minute. Yes. Is the textbook visible now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Is the sir. text good? Okay. Thank you, students. So just let me take the portion where we have done till yesterday. I think we have completed most of the things. So this portion, yes, we might have completed up to this section. Okay, it was finally in 1946 that women in France won the right to vote. Okay, ये हमारा कल तक का completion हुआ था. I hope that all of you are aligned with this one. Okay, चलिए. So some of the basic rights set forth in Olympe du Bois Declaration. ठीक है? So here we are having. Hey, someone's mic is on. Pratishruta. ठीक है. So we have been given with a short biography of one such revolutionary woman. Okay, her name was Olympe de Gouges. What was her name? Olympe de Gouges. Okay, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So here we have given with a very short information about one such revolutionary woman who has participated in the French Revolution. Okay, so Olympe de Gouges was one of the most important of the political active women in revolutionary France. Okay, so revolutionary France means the time when revolution was there in France. Okay, the French Revolution was going at that time. She was one of the most important politically active women. She protested against the constitution and the declaration of right of man and citizen. She has protested against the constitution of 1791, and she was also against the declaration of rights of man and citizen only because they excluded women from basic right that each human being was entitled to. So in 1791, against this declaration of rights of man and citizen, ठीक है, अब इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ने क्या किया था? It has discriminated against the
women. So she wrote a Declaration of Rights of Women and Citizen. उसने इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के विरोध में क्या लिखा? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, इन विच शी एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली. उसमें उसने क्वीन को और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को ये कहा कि प्लीज एड्रेस का मतलब हमारी इन मांगों पर, डिमांड पर ध्यान दो. In 1773, Olympidigues criticized the Jacobin government for forcibly closing down the women's club. जब जैकोबिन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई तो उन्होंने विमेंस क्लब, यानी जो विमेंस की पॉलिटिकल विंग्स थी, विमेंस की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसको बंद करने का ओलंपिडिगूज ने बहुत विरोध किया, अपोजिशन किया. कार्तिकेय, माय वॉइस इज कमिंग. She was tried by the National Convention which charged her with treason. ठीक है, उसको उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया कि तुमने सरकार की बुराई की है, देश के खिलाफ बोल रहे हो, गद्दारी कर रहे हो. ओके, तो उसके अगेंस्ट में केस चला. Soon after this she was executed. उसके कुछ दिनों के बाद उसको executed मतलब मौत की सजा दे दी गई. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? Okay. Yes. Now, so this is your fourth activity in portfolio. Okay. This is your fourth activity in portfolio. ठीक है, what you are supposed to write, आप लोगों को क्या करना है. ठीक, now this activity would comprise of on the life of few women participants. ठीक है, so जैसे this is about France. Okay, the life of a revolutionary woman, Olympidigues. Got it? यहां तक बात आई समझ में? Is it clear? Yes, sir. अभी you have Yes, to sir. title it as activity 4. Then activity 4 में आपको क्या लिखना है? टाइटल आप एक्टिविटी 4 के आगे लिखेंगे द लाइफ ऑफ रिवॉल्यूशनरी विमेन. ठीक, फिर उसके नीचे आपका फर्स्ट विमेन कौन सी होगी? ओलंपिडिगूज. इज इट क्लियर? Okay, इज sir. इट क्लियर? Yes, sir. है ना? सो आपका जैसे पेपर का मार्जिन है उसमें आपने लिख दिया एक्टिविटी 4, है ना? फिर उसके नीचे पहली लाइन में आपने लिखा द लाइफ ऑफ रिवॉल्यूशनरी वुमेन. ठीक, फिर थर्ड लाइन में आप लिखेंगे ओलंपिडिगूज. ठीक, उसके बाद ओलंपिडिगूज का इतना पूरा डिस्क्रिप्शन. देन आफ्टर सेकंड आप किसके बारे में लिखेंगे? इफ यू आर हैविंग योर पेन एंड पेंसिल विथ यू, you please write. Okay, so second thing you have to write about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu. Is it audible? Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second information you are required to write about Sarojini Naidu. Is it clear? Yes, sir. Yes, Okay. yes, sir. Third information you have to write about Annie Besant. ANNIE BESANT. These are from India. Okay, so you have to write about
Sarojini Naidu, then Annie Besant. Okay, then after Annie Besant, you need to write about one. Sucheta Kriplani, Sucheta. Sucheta Kriplani. Please write Kriplani. Is it clear? Sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this should be the title of the activity, and then you are writing about first woman Olympiadikos, second is Sarojini Naidu, third is Annie Besant, and fourth is Sucheta Kriplani. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let us proceed. So some of the basic rights is set for Sir, in the sir, this one we don't have to do in A4 size paper. No beta, because these are the writing part ना. ये कैसा है Writing work. भाई? इसमें कहीं पर कोई आपको ग्राफ, पिक्चर, फॉर्मेशन कहीं कुछ बनाना है क्या? No, sir. No, sir. Just you need to write the Information. information, है ना? So it can be written. भाई देखो, व्हाइट पेपर का यूज क्यों बोला था? वो A4 साइज व्हाइट पेपर इस केस में बोला था कि जो पहले की 3 एक्टिविटीज थी वो इस प्रकार की थी कि उसको आपके रूलिंग पेपर पर यदि आप करेंगे तो इट लुक्स शेबी, है ना? जबकि वही एक्टिविटी यदि हम किस पे लिख रहे हैं, प्लेन व्हाइट पेपर पे, समझ में आ रहा है? ठीक है? Yes, sir. आप लोग अब 9th स्टैंडर्ड में हैं, तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से करनी पड़ेगी, है ना? चलिए, so these are some of the basic rights which are written by Olympiadikos. Okay, what she has written: women is born free and remains equal to man in right, है ना? ये सारा आप लोग पढ़ेंगे. We are proceeding to the next. Okay, so the section 5th is the abolition of slavery. ठीक, अभी इसमें एक स्पेशल कंडीशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है? एंड व्हाट इज दिस स्पेशल कंडीशन? ये जो सिचुएशन है ये एक प्रैक्टिस थी फ्रांस में और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, एंड दैट इज अबाउट व्हाट? द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी. विच प्रैक्टिस? स्लेवरी. ठीक है? तो यहाँ हम एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी यानी स्लेवरी, गुलामी की जो प्रथा थी उसको खत्म करने के बारे में पढ़ेंगे. ठीक? So one of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colony. Revolutionary reform मतलब क्रांतिकारी सुधार, ऐसा सुधार, ऐसा चेंजेस जिसने पूरे ह्यूमन काइंड के पॉपुलेशन को क्या किया? इफेक्ट किया. So what was that change? The change was the abolition of slavery in फ्रेंच कॉलोनीज. ठीक है? फ्रेंच कॉलोनीज मतलब फ्रांस में जहां पर भी, फ्रांस ने वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जहां पर भी अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर रखी थी, वो जो कॉलोनीज हैं उनको क्या किया गया? एबॉलिश कर दिया गया. यानी उन कॉलोनीज में से स्लेवरी, गुलामी की जो प्रथा है वो क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई. इज इट क्लियर? Yes, गुलामी. sir. ठीक है? सो गुलामी की प्रथा या स्लेवरी था क्या और ये किस तरीके से होता था? तो द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, कैरेबियन आइलैंड मतलब आज का वेस्ट इंडीज नाम का कंट्री सुना है ना? हाँ सर. हाँ. सो जो Yes, sir. कॉन्टिनेंट ऑफ
जो कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के आसपास बहुत सारे आइलैंड्स हैं। क्या हैं? आइलैंड्स, Island. ठीक है। और वो सारे आइलैंड्स मिला करके, वो सारे आइलैंड्स मिला करके क्या कहा जाता है? कैरेबियन आइलैंड्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? Caribbean island. दे आर कॉल्ड एज कैरेबियन, ठीक है। सो वो जो कैरेबियन आइलैंड्स थे, दीज कैरेबियन आइलैंड्स वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ, these were under the control of different यूरोपियन कंट्रीज। अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज ने इन पर क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। ओके, और उस कब्जे के जरिए दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनीज, उन्होंने वहां पर क्या? अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रखी थी, ठीक। सो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, France, Spain, Portugal, Britain, they had established their colonies in these Caribbean. So इसमें जो फ्रांस था, फ्रांस की जो कॉलोनीज थी, the colonies of France are there in Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo. Okay, now these colonies were important supply of tobaccos, indigo, sugar and coffee. इन कॉलोनीज में फ्रांस क्या करता था? टोबैको ग्रो करता था, इंडिगो, शुगर और कॉफी, ठीक है। अब द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफैमिलियर लैंड मीन द शॉर्टेज ऑफ लेबरर ऑन द प्लांटेशन। जो यूरोपियन पॉपुलेशन के लोग थे, यूरोप के जो लोग थे, वो इन कैरेबियन आइलैंड्स में जाकर के खेती बाड़ी नहीं करना चाहते थे और कहीं भी काम नहीं करते थे, ठीक है। इसलिए क्या होता था? दे हैड अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उनको हमेशा प्लांटेशन में, अपनी खेती बाड़ी में कौन सी समस्या फेस करना पड़ता था? शॉर्टेज ऑफ लेबर। दिस वॉज मेट बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अब ये जो कमी थी कि काम करने वाले आएंगे कहां से, खेतों में काम करने के लिए कहां से लोगों को लेकर के आएंगे, तो इस समस्या का हल किसके जरिए निकला? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड मतलब गुलामों की खरीदी और बिक्री का एक व्यापार शुरू हुआ। गुलामों की खरीदी का क्या शुरू हुआ? व्यापार। अब गुलाम मतलब इंसानों को खरीद करके और उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता। तो द स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी। ये जो स्लेव ट्रेड था, ये कब स्टार्ट हुआ? इट स्टार्टेड इन द 17th सेंचुरी। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डेक्स और नेंटेस, ठीक है। ये दोनों बहुत ध्यान से लर्न कर लेना, द नेम ऑफ दीज टू पोर्ट्स, ओके, बॉर्डेक्स एंड नेंटेस, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेम अच्छे से याद कर लेना। सो द फ्रेंच मर्चेंट्स sailed from the port of Bordeaux और Nantes। फ्रांस में दो पोर्ट थे, one of the port is Bordeaux and another one is Nantes। तो ये sailed मतलब यहां से अपनी समुद्री यात्रा चालू करते थे to the African coast where they bought slaves from local chieftains, है ना। और यहाँ ये क्या करते थे? लोकल chieftains मतलब जो अफ्रीकन ट्राइबल पीपल थे, वहां के कबीले के लोगों से ये क्या करते थे? स्लेव्स, इंसानों को गुलामों के रूप में खरीद लेते थे। ब्रांडेड एंड शेकल्ड, द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप फॉर 3 month long voyage across the Atlantic to the Caribbean। ब्रांडेड एंड शेकल्ड मतलब उनके हाथों पर बाकायदा निशान लगा दिया जाता था, ठीक है, और हर एक पर्सन को एक नंबर दे दिया जाता था
बिल्ला नंबर 730, ठीक है। इनको जहाजों में भर के और 3 महीने की लॉन्ग जर्नी से अटलांटिक से कहां तक लेकर के जाते थे, कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, यहाँ पर इन इंसानों को प्लांटेशन ओनर्स, जो लोग इंडिगो प्लांटेशन करते थे, कॉफी प्लांटेशन करते थे, ठीक है, शुगर और बाकी के, तो इन प्लांटेशन ओनर्स को, हाँ सर जब जब ये लोगों को स्लेव बना के लेके जाते थे, तब लोग मना नहीं करते थे कि नहीं हमें, मतलब मना नहीं करते थे जाने से, या फिर स्लेव हमको, मतलब उनको अपना स्लेव बनने से? बेटा संध्या, क्या होता है, जैसे एक बात बताओ, मान लो तुमको तानाजी फिल्म पसंद नहीं है ना? तानाजी फिल्म देखी है? यस सर, देखिए। मान लो तुम्हें तानाजी फिल्म पसंद नहीं है, परंतु अब घर भर के सभी लोग जा रहे हैं जबरदस्ती और तुमको भी ले जाए, तो तुम मना करने के बाद में भी क्या कर लोगी, जाओगे कि नहीं जाओगे? सर अब जाना ही है क्योंकि घर पे तो सब जा रहे हैं। हाँ, तो अब उस कंडीशन को यहाँ एक्सेस, हाँ बेटा। सर पर वहाँ पे तो कोई मतलब घर भर नहीं होता, तो फिर वो अपनी मर्जी से क्यों जाते हैं वहाँ पे? बेटा वो लोग मर्जी से नहीं जाते थे, आपने यदि सुना देखा है ना, these slaves were purchased from local chieftains। local chieftains मतलब कबीलों के जो सरदार वगैरह होते थे ना, हाँ, तो ये गुलामों को किससे खरीदा जाता था? कबीलों के लोकल सरदार चीफ्टेंस। लोकल चीफ्टेंस, है ना। तो ये जो ट्राइबल, ठीक है, ये जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, तो ट्राइबल्स कम्युनिटी में क्या होता है कि वो जो कबीले के सरदार होते हैं, ट्राइबल चीफ्टेंस, कबीले का जो मुखिया होता है, वो एक प्रकार से इन लोगों का देवता यानी सब कुछ होता है। यानी कबीले के सरदार की आज्ञा का पालन करना जरूरी है, कबीले के सरदार की आज्ञा का पालन करना जरूरी है ना। तो कबीले के सरदार ने बेच दिया, तो अब वो और कहीं कुछ विरोध कर पाएंगे क्या? नो सर। नो सर। तो इसलिए ये जो प्लांटेशंस में काम करने के लिए गुलाम भेजे जाते थे, इस सरदार ने बेच दिया, मतलब अब इनकी जिंदगी किसके हाथ में आ गई? यूरोपियंस के हाथ में आ गई। गॉट इट? ओके, नाउ सर। इज इट क्लियर? यस सर। Now, okay, so the exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo। अब बड़ी संख्या में अफ्रीका से लेबर खरीद करके कहां पर भेजे जाने लगे? यूरोप में भेजे जाने लगे, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में। गॉट इट? तो इससे क्या हुआ, जो कैरेबियन आइलैंड्स थे वहां पर काफी लार्ज क्वांटिटी में शुगर, कॉफी और इंडिगो प्रोड्यूस होता था, और वो सारा का सारा कहां पर भेज दिया जाता था? यूरोपियन मार्केट में। तो शुगर, कॉफी और इंडिगो का प्रोडक्शन जो है वो किसके जरिए बढ़ा? स्लेव लेबर्स के जरिए बढ़ा। बिकॉज ऑफ दैट द पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डेक्स एंड नेंटेस own their economic prosperity to the flourishing slave trade। तो जो दो सिटीज थी, है ना, these two are the port cities। कौन कौन से? बॉर्डेक्स और नेंटेस। तो जो दो पोर्ट सिटीज थी, बॉर्डेक्स और नेंटेस, owned their economic prosperity, यानी इन दोनों शहरों में जो लोगों के पास पैसा था वो किसके कारण आ रहा था? स्लेव ट्रेड के कारण आ रहा था। यानी ये शहर बहुत अमीर थे, पर सिर्फ इनकी अमीरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था? स्लेव ट्रेड।
Throughout the 18th century, there was a little criticism of slavery in France. एक 18th century तक इस slavery की जो प्रथा थी, इसको कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया जाता था। लोग बाग कंसीडर करते थे कि चल रहा है, बिजनेस है, फायदा होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। That was the main aim of the people. Okay, so no one looks slave trade as an evil practice. कोई भी slave trade को evil practice के रूप में, है ना, नहीं देखता था। They consider कि चलो व्यापार है और व्यापार है, ठीक है। So the National Assembly had long debates about whether the rights of men should be extended to all French subjects including those in the colony. इसलिए जब 1791 में पहली बार नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, तो उसमें भी लॉन्ग डिबेट हुई कि ये जो राइट ऑफ मैन है ये सभी को मिलना चाहिए, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज fearing opposition from businessmen whose income depend on the slave trade. तो चर्चा तो हुई कि गुलामी की प्रथा गलत है, परंतु कोई कानून पास नहीं किया गया, क्योंकि इससे उन बिजनेसमैन की नाराजगी का डर था जिनकी इनकम किसके ऊपर डिपेंड थी, स्लेव ट्रेड की। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब कौन सी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। कन्वेंशन कौन सी गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। So the government of Maximilian Robespierre, that is the convention in 1794 legislated मतलब कानून बनाया to free all slaves in the French overseas possession. तो 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी उसने एक कानून बनाया और उसके जरिए फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन, फ्रांस के जितनी भी कॉलोनीज थी उसमें जितने भी स्लेव्स थे उनको फ्री करने का ऑर्डर दे दिया गया। बट दिस टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। क्यों? 10 years लेटर, 10 साल के बाद में ही नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। नेपोलियन ने फिर से क्या रीइंट्रोड्यूस कर दी, स्लेवरी। ठीक है सर? हाँ सर, अगर एक बार लॉ बन जाता है तो उसको चेंज कर मतलब कोई भी चेंज कर सकता है नेक्स्ट गवर्नमेंट आके। जैसे अभी कोई लॉ बन जाता है तो बहुत मुश्किल से ही वो रीइंट्रोड्यूस या फिर वापस लिया जाता है। देखो क्या होता है, लॉ बनाने का अधिकार किसका है, गवर्नमेंट का, और लॉ चेंज करने का अधिकार भी किसका है, गवर्नमेंट का। ठीक, अब हम अगेन आज की कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो आज यदि हम इंडिया को डिस्कस करें तो हमारे पास एक प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लॉ बनाने के नियम भी दिए हैं और उस पुराने लॉ को हटाने के लिए नया लॉ बनाने के नियम भी दिए हैं। ठीक है, अभी तो सेम वाज अ केस ऑफ फ्रांस। भाई राजा है, रूलर है, कोई भी लॉ बना सकता है, कोई भी पुराना लॉ हटा सकता है। ठीक है, so Napoleon reintroduced the slavery. Now plantation owner understood their freedom as including the rights to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. जो प्लांटेशन ओनर्स थे, ठीक है, तो जो बड़े बड़े प्लांटेशंस के मालिक थे वो क्या मानते थे कि अफ्रीका के जो नीग्रोज हैं उनको गुलाम बना करके और उनको बेचकर अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट ने अपनी कमाई करना उनका अधिकार है। इसलिए जो प्लांटेशन ओनर्स थे उनके प्रेशर में नेपोलियन ने क्या किया, स्लेवरी की प्रैक्टिस को फिर से इंट्रोड्यूस किया। स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848 और 1848 में जाकर के फाइनली पूरी तरीके से क्या स्लेवरी सिस्टम फ्रांस
और उसकी जितनी कॉलोनीज थी उसमें खत्म किया गया। ठीक है, इज इट क्लियर? सर Yes, sir. अभी तो द गवर्नमेंट abolished this slavery, अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती तो अगर उसको वापस चाहती कि कर देते हैं तो वो वापस मतलब abolish फिर उल्टा कर देती है उसका। देखो क्या होता है कि जो स्लेवरी का सिस्टम है, ठीक है, जो स्लेवरी है, ठीक है, स्लेवरी में क्या होता है कि गुलाम को खरीदा और बेचा, है ना। अब उस जमाने में लोग बाग ना पढ़े लिखे थे ना एनकरेज थे, तो वो टाइम पीरियड अलग था ना संध्या, है ना। और अभी का जो टाइम पीरियड है वो कैसा है? Now everyone is educated. हाँ, सो अभी किसी इंसान को गुलाम बनाना जो है कि भैया खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है ना। तो अभी ये चीजें सोसाइटी जो है, पूरा पूरा समाज जो है वो ही एक्सेप्ट नहीं करता। पूरा समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। समझ में आया? ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अभी तो कोई खरीदा बेचे का काम ही नहीं बचेगा, है ना। ठीक है भाई, देखो अल्टीमेटली चीजें खरीदी बेची कब जाएगी? व्हेन सोसाइटी इज रेडी टू एक्सेप्ट। अच्छा, मान लो संध्या चिकन खाया है? नो सर। अच्छा, बिकॉज यू आर वेजिटेरियन? यस सर। Okay. Acha, for example, someone is a non-vegetarian. Any non-vegetarian, please speak out. Sir. Who is there? Sir Shubham. Who is there? Sir I. Sir, me. Arnav, are you non-vegetarian? Sir. Hello. सर शुभम डाली। I am. Arnav, are you non-vegetarian? Arnav Pinge, are you non-vegetarian? Sir. Sir. अरे हाँ बोलो। Sir, I am non-vegetarian. है? अरे कोई नॉन वेजिटेरियन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. प्रथमेश भोयार। हाँ, तो आई वांट टू टॉक ओनली विद प्रथमेश भोयार। चंदना, आर यू नॉन वेजिटेरियन? Yes, sir. ठीक है, अब ये बताओ चंदना, आपने चिकन खाया है? Yes, sir. ठीक है, बिकॉज ईटिंग चिकन इज एक्सेप्टेबल इन अवर सोसाइटी, है ना। हमारे समाज में चिकन खाना एक्सेप्टेबल है, तो हम चिकन खा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में मटन, बकरे का मटन खाते हैं? यस सर। ठीक है, फिश खाते हैं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये बताओ, क्या हम लोग बंदर खाते हैं? नो सर। No, sir. जबकि No, sir. बंदर भाई नॉन वेजिटेरियन है, तो चाहे चिकन खाओ, चाहे बकरा खाओ, चाहे फिश खाओ, अल्टीमेटली हम क्या खा रहे हैं? मांस खा रहे हैं, फ्लैश खा रहे हैं। ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सो ले दे की कहानी वहीं पर आई ना। ले दे करके हमारी कहानी कहाँ आई कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। समाज में उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसमें कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। आर यू गेटिंग द लॉजिक ऑफ माइंड? यस सर। तो ये जो सिस्टम है
यही काम करेगा। इज इट क्लियर? ओके सर। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. उस समय की जो सोसाइटी थी, उस समय की सोसाइटी में गुलामी की जो प्रथा थी, स्लेवरी जो था, वो एक्सेप्टेबल था, लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना? गॉट इट? तो उस Yes, चीज sir. को समझते समझते, स्लेवरी को समझते समझते, स्लेवरी का विरोध करते करते, इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम, इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर हाँ, sir. सर why it took long time? अरे वाई टुक लॉन्ग टाइम? एक बात बताओ अर्णव, अर्णव, Sir, Shubham Dali speaking. हाँ ठीक है, शुभम डाली। अच्छा ये बताओ, अभी मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? Surface area and volume. वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? About 40. Above 40. अच्छा, मान लो your teacher has explained the solution of any one question, ठीक है? So will all the student be able to understand it at the exactly same time? कि 5 मिनट में No, सबको sir. सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा? No sir. नहीं आएगा। क्यों? तो हम क्या ये सवाल पूछे कि why it take long time, too much long time to Divyanka Jangil to understand the question? बेटा, it depends on the capacity of the person to person. Got it? ठीक है? शुभम डाली, समझ में आया? Yes sir. तो ऐसे ही उस समय की जो सोसाइटी थी, उस समय की सोसाइटी में जितने भी लोग थे, सभी लोग उस चीज को टेकन एज ए ग्रांटेड यूज करते थे, है ना? टेकन एज ए ग्रांटेड यूज करते थे। अच्छा ये बताओ, आपके घर में चपाती बनती है, रोटी बनती है? Yes, Yes sir. sir. Yes, Yes sir. sir. आई एम टॉकिंग विथ शुभम फर्स्ट, ओके? यस, शुभम, रोटी बनती है ना? Yes sir. पैकेट का आटा खरीदते हो या फिर गेहूं पिसवाते हो? सर गेहूँ पिसवाते हैं। गेहूं पिसवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मार्केट से जितना भी पैकेट वगैरह रवा खरीदते हो, बेसन खरीदते हो, ये सब भी पिसवाते हो या मार्केट से पैकेट खरीद के लाते हो? सर मार्केट से खरीदते हैं। अच्छा, तो प्लास्टिक की पन्नी में पैक आता है या पत्ते में पैक करके देते हो? सर प्लास्टिक। अच्छा, वो जो प्लास्टिक की पन्नी है उसका क्या करते हैं? सर कुछ नहीं, कचरा फेंकने के काम आता है। कचरा फेंकने के काम आता है ना? अच्छा, आपने कभी उस प्लास्टिक की पन्नी में पेड़ पौधे लगाए क्या? नो सर। हाँ, अब पन्नी फेंकी तो अल्टीमेटली कचरे में जाएगी एंड इट डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट। Sir, I planted in. समझ में आ रहा है? तो क्या होता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड में लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डिफरेंट होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो उस जमाने में लोगों ने इतना सोचा ही नहीं, क्या करना है सिर फोड़ के। ठीक, चलिए, सो इट इज 8:42 राइट नाउ, है ना डियर स्टूडेंट्स? सो अ वेरी स्मॉल पोर्शन वाज लेफ्ट and that we'll do in tomorrow's session, okay? So we are binding up the session Okay, because sir. it is 8:42 and the next Yes, sir. class is about to Okay, begin. sir. Thank you, students. Okay, sir. Bye. Thank you, Thank you, sir. 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 Thank you, sir.